Thank you, Ms. Fajar. Thank you, my team, for arranging this webinar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to all. Am I audible? My voice is clear, I think. Thank you so much. So first of all, I would like to thank you all for joining us in today's technical webinar. My name is Mia Muhammad Ramzan, and with me is Muhammad Imran Malik. He is also expert and partner at TMRAC. So for panel discussion and for the things which may not be which may be more important for all of us. So for the learning objective for today's webinar, as told by Ms. Fajar, is that as you all know, finance bill which was presented before the National Assembly in June on June 9, 2023 was passed on 26th June, and amendments which has been made in the taxation laws through Finance Act 2023 are effective from 1st July 2023. So in today's webinar, we will brief to all of you about the important amendments in the Income Tax Ordinance, Sales Tax Act 1990, the Islamabad Capital Territory Tax on Services Ordinance 2001, and the Federal Excise Act 2005. This is my own definition of the tax, which I use to brief in all of my presentations. The tax is the price of living in a civilized society. If we are living in any civilized society, we have to pay some price, and that price is called the tax. And same is the case that in every country, almost every country around the globe has their own taxation system and levies which they collect from the inhabitants of their country, so that they can support to those who are underprivileged, and also to provide the common facilities which all people of that country or society enjoy. So that is same is the case with Pakistan, but in Pakistan the taxpayers are lesser when comparative to the expenses of the government. And in the expense of the government, most of the major expense is debt servicing, because we have been taking loans from IMF and other banks and other worlds of the other world. And due to the reason that we could not collect, or we have not been able to collect the revenues which may match our expenditure, and that's why we have to take loans. So in this year, the same situation was there, and there was budget deficit of around 7 trillion. And now IMF deal has been finalized, and we have to take more loans so that we can survive. Otherwise, we did not have the reserves in the bank to meet our import bills and other expenditures which we have to pay in the dollars, and also to repay the loans which we have taken from IMF and other donor agencies in the world. So for this year, the tax revenue breakup is this, that the total tax revenue has been estimated to 9.22 trillion, which was revised after when the budget was approved by more than 200, and now the budget is almost 9.5 trillion. So those taxes, the major part is from the indirect taxes, which is almost 45% of the total, 59% of the total tax revenue, and 40% is the direct tax revenue. That is the income tax, WWF, capital value tax, etc. So this is just to brief you about that how the taxations, what are the taxes and how these would be collected, and what is the total budget of tax collection and total target of the for the FBR to collect taxes during this year. So let's start the amendments through the Finance Act 2023. सबसे पहले we will explain the amendments in the income tax law. As you all know that through Finance Act, the amendments are made every year to cope up with the revenue targets
और इसमें जो अमेंडमेंट्स होती हैं उसमें बेसिक जो पर्पस ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेवेन्यू है उसमें जो इजाफा किया जाना है उसको कैसे पूरा करना है। तो इसमें समटाइम्स मिनी बजट्स भी आते हैं। यू ऑल नो दैट इन February 2023 देयर वाज मिनी बजट, जबकि आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करने के लिए हमारे टैक्स रेवेन्यू पूरे नहीं हो रहे थे लास्ट ईयर्स की बजट के। तो एक जिसमें मेजर जो इंक्रीज थी या चेंज था दैट वाज 1%। सेल्स टैक्स रेट वाज इंक्रीज बाय 1%। तो उसके बाद फिर अभी जो एनुअल बजट है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ रेवेन्यू मेजर्स लिए गए हैं। रिलीफ मेजर्स तो बहुत कम है, जस्ट टेक्निकल जो अनोमलीज हैं या टेक्निकल मेजर्स हैं वो ली गई हैं। ऑल्दो कि जब बजट अनाउंस हुआ था देयर वर सर्टेन रिलीफ मेजर्स एंड आल्सो some measures which could have promoted a few sectors of the economy, including IT sector and agro-based businesses। उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे लेकिन वो बाद में अप्रूव नहीं हुए। तो एनी हो, अभी जो अप्रूव है उसके बारे में हम जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ में जब बजट आया था तो सैलरी, इंडिविजुअल और बाकी में कोई रेट शेट में कोई इंक्रीज नहीं थी। बट आपको जैसा कि बताया कि कुछ 70 बिलियन का 70 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो सैलरी के रेट्स और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड एओपीज के रेट्स हैं उसमें कुछ रद्दोबदल किया गया और उसमें मेजर शिफ्ट 2.4 मिलियन से जो ऊपर वाली सैलरीज थी रेट्स में इंक्रीज किया गया। सैलरी पर्सन्स के लिए देयर वर 7 स्लैब्स प्रीवियसली, ये आपके सामने टेबल जो है वो नजर आ रहा है। और अभी जो है उसमें 6 स्लैब्स बना दिए गए हैं और 2.4 मिलियन से जो अबव सैलरीज हैं उनके लिए स्पेशली रेट में जो है वो इंक्रीज किया गया है। आप ये देखें कि 2.4 मिलियन से जो पहले अबव सैलरीज थी उनके लिए रेट था 165,000 प्लस 20% था और अभी 165,000 प्लस 22.5% यानी 2.5% का इजाफा किया गया। फिर 3.6 मिलियन से 6 मिलियन तक जो पहले रेट था दैट वाज 25%, यानी कि वो प्रीवियस स्लैब का जो अमाउंट का फर्क है वो भी इसमें आ गया। अब 4,35,000 प्लस 27.5% जो प्रीवियस स्लैब का रेट 2.5% से बढ़ा है वो भी उसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से अब जो आखिरी स्लैब है विच इज द हाईएस्ट स्लैब रेट जो कि 35% है, पहले वो 12 मिलियन से ऊपर वाली सैलरीड पर्सन के लिए होता था। अब वो 6 मिलियन से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके ऊपर हाईएस्ट स्लैब से टैक्स रेट जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल होंगे। और आप सबको पता है कि सैलरी टैक्स एडवांस में सारा एडवांस टैक्स के तौर पे जमा होता है सेक्शन 149 के तहत। तो फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड ये जो टैक्स है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट को मंथली बेसिस, क्योंकि सैलरीज पे ही टैक्स रिडक्शन के बाद होती है अंडर सेक्शन 149। सो दिस वाज वन मेजर चेंज जो कि तमाम लोगों को, सैलरीड पर्सन्स को इफेक्ट करेगी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इफेक्ट करेगी जिन्होंने कंप्लाई कर लिया। Then tax rates for individuals and AOPs, as you all know that individuals और AOPs के लिए जो टैक्स रेट्स हैं, तो जो अदर इंडिविजुअल्स हैं अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल, उसमें तमाम किस्म के इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जिसमें रेंटल इनकम वाले इंडिविजुअल हैं, अदर इनकम वाले इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, इवन कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है अदर देन फाइनल फिक्स टैक्स जो कि बहुत कम रह गया है, वरना अभी मिनिमम टैक्स है ज़्यादातर। तो उसमें रेट जो अप्लीकेबल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप पे या इंडिविजुअल्स पे और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म्स कह सकते हैं, क्योंकि टैक्स लॉ में एसोसिएशन ऑफ पर्सन जब भी डिफाइन होती है तो इसका मतलब यही होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं। तो उसमें जो रेट्स हैं उसमें 8 स्लैब्स थे और अब उन स्लैब्स को 7 कर दिया गया और इसमें भी जो रेट है वो 20 जो इंक्रीमेंट है वो इसमें शुरू हो गई है 1.2 मिलियन से ऊपर। और इसमें भी जो रेट्स हैं वो ये देखें कि 15%, पहले 12.5% होता था, 15% कर दिया गया, 70 यानी 2.5% का इंक्रीमेंट इसमें भी है। और इसमें लास्ट स्लैब जिसमें 35% रेट था दैट वाज 6 मिलियन अबव, और अभी ये जो लास्ट स्लैब है 4 मिलियन अबव जो है वो 35% रेट एप्लीकेबल होगा।
So this is also very important, but this would be applicable for tax year 2024. 2023 के लिए वही रेट हैं जो कि अभी जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे लोग, वो प्रीवियस रेट जो ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसके मुताबिक करेंगे. बट एनी हाउ फॉर द नेक्स्ट ईयर वी हैव टू प्लान कि जो रेट होगा टैक्स का वो ये वाला होगा जो अभी अमेंडेड है. तो देन अनदर अमेंडमेंट, ये भी फाइनेंस बिल में नहीं थी, ये अभी तक हम दो तीन जो अमेंडमेंट्स डिस्कस किए हैं वो सारी हैं जो कि बजट में नहीं थी और बाद में अमेंड हुई. ऑल्दो कुछ रिकमेंडेशंस, ये वाली जो अमेंडमेंट है ये स्पेशली रिकमेंडेशंस पे हुई, जिसमें चैम्बर्स और बाकी लोगों ने भी रिकमेंड किया कि क्योंकि मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने जो बढ़ा दी थी वो 32,000, आपको पता होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि मिनिमम वेज 32,000 होगी और पहले 25,000 थी. अब एक सेक्शन 21 है जिसके तहत डिडक्शंस नॉट अलाउड वाला सेक्शन है कि उसमें आप एक्सपेंसेस जो है वो कैश के थ्रू पे नहीं कर सकते, और जिसमें गुंजाइश कर दी गई है कि इन केस ऑफ अदर पेमेंट्स 10,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हैं, बट एक सिंगल हेड में 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन सैलरी के केस में उसमें एक लिमिट थी कि 25,000 पर मंथ सैलरी आप किसी भी बंदे को कैश में पे कर सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा जिसकी होगी उसको बैंक अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होगा और उसकी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल ही होगी. तो अभी वो जो अमाउंट 25,000 वाली थी उसको 32,000 कर दिया गया है. तो ये बहुत सारी कंपनीज जो कि पेमेंट्स करती हैं वेजेस, जिनकी जो लो वेजेस एम्प्लॉयज हैं या जो जनरल लेबर है उनको पेमेंट करने के लिए दे कैन पे टू देम 32,000 पर मंथ इन कैश. तो इसके बाद जी सुपर टैक्स एंड हाई अर्निंग पर्संस, ये अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में भी प्रपोज हुई थी और अभी इसको पास कर लिया गया. इस ये बेसिकली टैक्स ऐसा है जो कि चैलेंज्ड भी था सुप्रीम कोर्ट तक, बट उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन का उसमें जस्ट जिक्र आया, जैसे एफएक्स फौजी फर्टिलाइजर और बहुत सारी कंपनीज के केसेस थे क्योंकि उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन थी फॉर टैक्स ईयर 2022. तो बहुत सारे लोग कोर्ट कोर्ट में भी गए. तो स्टिल मामला जो है अभी फाइनलिटी गेन नहीं की, बट गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग दिस टैक्स, सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्संस, और ये कलेक्टेबल होगा. इसमें जो मेजर अमेंडमेंट है वो दो हैं. एक तो ये है कि उसमें प्रीवियसली जो रेट है वो मैक्सिमम 4% था 300 मिलियन से अबव जिनकी इनकम थी. तो अभी इस रेट स्लैब को फॉर टैक्स ईयर 2023 जो है वो 10% तक कर दिया गया, यानी स्लैब्स बढ़ा दिए गए हैं. या 8 स्लैब्स हैं टोटल, यानी एक्सीडिंग 500 मिलियन 10% ऑफ द इनकम ये हो गया, जैसे कि ये रेट जो अमेंडेड रेट है उस टेबल में दिया गया है. इसके साथ साथ जो ये सॉरी प्रपोज रेट नहीं है, ये पास्ट रेट है. ये पहले प्रपोज किया गया था, बाद में एनेक्टेड भी हो गया, विच इज इफेक्टिव फॉर टैक्स ईयर 2023 23 एंड ऑनवर्ड. लेकिन इसमें रेट टेबल जस्ट चेंज किया गया है. उसमें एक प्रोवाइजो था लास्ट ईयर के टैक्स ईयर 2022 के लिए ये रिट्रोस्पेक्टिवली बेसिकली ये टैक्स था. तो उसमें कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर टैक्स रेट जो है वो 300 मिलियन से अगर ऊपर इनकम होगी तो वो 10% होगा. वो 2022 के लिए वैसा का वैसा ही प्रोवाइजो स्टिल एग्जिस्ट करता है. और उसमें बैंकिंग कंपनीज के लिए फॉर टैक्स ईयर 2023 रेट जो था वो भी 10% होगा, वो भी वैसा का वैसा ही प्रोवाइजो रह गया. और बाकियों के लिए जो रेट टेबल है वो 2023 से ऑनवर्ड ये दिए गए हैं. अब इसमें एक और मेजर ये तो एक अमेंडमेंट रेट वाली हो गई, और दूसरी अमेंडमेंट इसमें मेजर ये की गई है कि इसको 147 में भी एडवांस टैक्स में भी शामिल कर लिया गया है. सब सेक्शन 5A इंसर्ट किया गया है 4C को कैटर फॉर करने के लिए कि 4C का जो टैक्स है इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स, जैसा कि एडवांस टैक्स जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो पे करती हैं. तो ये भी हाई अर्निंग पर्सन जिनका लास्ट ईयर में बनेगा टैक्स या नेक्स्ट ईयर के टर्नओवर की और प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे जो टैक्स बनेगा 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस में पे करना होगा. तो दिस हैज आल्सो बीन मीन अमेंडेड. सेक्शन 147 में सब सेक्शन 5A जो आया है इसके तहत अभी
हर क्वार्टर पे जो कंपटीशन होगी उसमें जो 4C वाले एलिमेंट्स हैं उसको भी साथ शामिल करके टैक्स जो है वो जमा करवाया जाएगा एज ए सेपरेट लाइन आइटम। उसमें अभी वो प्रेस्क्राइब होगा कि 147 की स्टेटमेंट है उसके अंदर स्पेशली इसको भी इनबिल्ट करना होगा। और इसके साथ साथ आपको पता है कि सिक्योरिटीज की सेल परचेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल विद होल्डिंग एजेंट है वो NCCPL है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। वो भी इसी तरीके से ही 4C का जो टैक्स है वो कंप्यूट करेगी और कैपिटल गेन्स पे, और वो भी उसमें विद होल्डिंग करके जमा करवाएगी। बाकी इसमें 4C के बारे में जर्नल ये है कि फाइनेंस एक्ट 2022 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये थोड़ी सी डिटेल है जो कि ऑलरेडी भी आप सब लोगों को पता है, जस्ट एक हिस्ट्री स्लाइड पे दी गई है कि इसमें सर्टन सेक्टर्स के लिए 10% रेट, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, बैंकिंग कंपनीज के लिए 10% फॉर टैक्स ईयर 2023 था। और उसके अलावा पिटिशंस फाइल की, इसका भी मैंने स्टेटस बता दिया है। हाई कोर्ट सिंध ने दीज प्रोविजंस इन एप्लीकेबल कर दी थी फॉर टैक्स ईयर 2022 ऑन दी बेसिस के ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, देन इट वाज उसमें और डिस्क्रिमिनेटरी भी इसको कंसीडर किया गया कि उसमें रेट फर्क थे। तो हाई कोर्ट का जो सिंध हाई कोर्ट का मैटर है वो फिर डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि अभी भी सब जुडिस है, फाइनलिटी गेन नहीं की। और दूसरे हाई कोर्ट्स में भी ये फैसले पेंडिंग है। एनी हो, गवर्नमेंट ने इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स इस साल कर दी हैं। तो पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू इनेक्टमेंट का, उसके मुताबिक उनकी कोशिश यही है कि ये टैक्स लोगों से कलेक्ट किया जाए। तो इसमें अब जो रेट इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो 2023 के लिए लास्ट ये वाले जो हैं, इसके मुताबिक 2023 टैक्स ईयर के लिए ये रेट पेएबल होंगे, इस रेट पे टैक्स पेएबल होगा। और इसमें आप सबको अंदाजा है कि जो फाइनल टैक्स वाली अमाउंट्स हैं, फाइनल टैक्स वाली इनकम्स हैं, उनकी भी इम्प्यूटेबल इनकम को शामिल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन। तो इसके बारे में अगर किसी का सवाल हुआ तो बाद में भी पूछ सकते हैं। एनी हाउ लास्ट ईयर इस पे काफी डिस्कशन हो चुकी थी। अभी जस्ट दो ही चेंजेस हैं इसमें, एक तो रेट चेंज और दूसरी जो है एडवांस टैक्स क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे करने। देन एक अभी फाइनेंस बिल में कोई ऐसा जिक्र नहीं था। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स है, उसके ऊपर ये एक एडवांस टैक्स लेवी किया गया है। आप सबको शायद अंदाजा हो कि एक 2020 में स्कीम आई थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर और बिल्डर्स को प्रमोट करने के लिए, एक एमनेस्टी स्कीम थी या एक ऑप्शनल लोअर टैक्स स्कीम थी, सेक्शन 100D। वो तो खत्म हो चुकी, उसके प्रोजेक्ट्स भी ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहे हैं। उसमें जिन लोगों ने ऑप्ट किया था उन्होंने अभी सितंबर 2023 तक उसके प्रोजेक्ट भी क्लोज करने हैं। तो ये एक बिल्डर्स और डेवलपर्स, ज़ाहिर है काम तो हो कंस्ट्रक्शन का होता रहेगा और डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्लॉट्स भी होता रहेगा। तो इसके लिए एक टैक्सेशन तो इन एंटिटीज की नॉर्मल टैक्सेशन होगी। अब यानी वो ऑप्शन रिड्यूस रेट वाली या फिक्स टैक्स वाली नहीं है। इस सेक्टर में जो भी बिजनेस कर रहे होंगे उनकी टैक्सेशन नॉर्मल टैक्सेशन होगी, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस ऑफ द एंटिटी। कि अगर एओपी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो उसके रेट इंडिविजुअल एओपी वाले लगेंगे, और अगर कोई कंपनी है लिमिटेड कंपनी तो उसके ऊपर कंपनी वाला रेट लगेगा। एनी हो, ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एडवांस टैक्स में ऑलरेडी भी बेसिकली वो टैक्स जो है उनका बन जाना था, क्योंकि 147 जो है वो तमाम कंपनीज पे, तमाम एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। इवन सोल प्रोप्राइटरशिप और एओपीज जो हैं वो 1 मिलियन से अगर किसी की लास्ट ईयर इनकम ज्यादा है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। एनी हो, उनके लिए स्पेशल रेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेक्शन 147 में कि जो भी बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट और अदर बिल्डिंग्स का काम करते हैं, यानी बिजनेस एंटिटीज, इसको भी प्रेस्क्राइब भी करेगी गवर्नमेंट। तो और या डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स, अदर प्लॉट्स
फॉर इटसेल्फ और अदरवाइज। इटसेल्फ का मतलब ये है कि अगर जो बिजनेस एंटिटी है वो अपने लिए भी कोई बिल्डिंग बनाती है तो उसके ऊपर भी टैक्स जो है, ये जो एडवांस टैक्स है वो उनको जमा करवाना पड़ेगा। और इसके लिए रेट स्पेसिफिक रेट शेड्यूल एक नया ऐड किया गया है, पार्ट 2B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। और इसमें रेट दिए गए हैं कि जो पर्सन फॉलोइंग अंडर दी सेक्शन 147(5)(c)(1) वन जो है ये वाला, जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्ड और अदर बिल्डिंग्स, यानी ये हो गया बिल्डर्स के लिए कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जो है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, जो बिल्डर्स ये काम कर रहे होंगे उनके लिए जो रेट है वो ये वाला दिया गया है कि किसी भी साइज का प्लॉट हो उसके ऊपर 250 पर स्क्वायर फीट। ये सिटी वाइज, फिर बड़े सिटीज का रेट अलग है, हैदराबाद, सक्कर, मुल्तान का अलग है, अर्बन एरियाज का अलग है। तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन एरिया का जो एडवांस टैक्स है वो जमा करवाएंगे। और टैक्स ऑन पर्सन फॉलोइंग अंडर सेक्शन 147(5)(c)(1) फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए ये वाले ऊपर वाले रेट हैं। और अप टू 300,000 स्क्वायर फीट जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके लिए रेट जो है वो 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 65 पर स्क्वायर फीट। और मिनिमम जो अर्बन एरियाज में ये बिल्डिंग होंगी उनके ऊपर 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। इसी तरीके से फिर जो डेवलपर्स हैं जो सेल ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्लॉट्स पे काम करते हैं, यानी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर प्लॉट्स, तो उसके ऊपर जो है बेसिकली जो रेट होगा वो एनी उसमें साइज के हिसाब से है कि एनी साइज अगर है तो उसमें 150 पर स्क्वायर यार्ड, 130 पर स्क्वायर यार्ड या 100 पर स्क्वायर यार्ड है। और अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो उनके ऊपर रेट कम है टू प्रमोट के इंडस्ट्री के लिए। या ऑलमोस्ट वही रेट्स हैं जो कि 100D में जो फिक्स टैक्स रेट स्कीम थी उससे मिलते जुलते हैं। उस तरीके से एडवांस टैक्स इन लोगों से लिया जाएगा। तो दिस इज न्यू थिंग जो कि फाइनेंस बिल में नहीं थी, अभी फाइनेंस एक्ट में प्रपोज हुई है। और इसमें प्रोवाइजो भी प्रोवाइजो भी दिया गया है, दो प्रोवाइजो हैं बेसिकली, कि जहाँ पे दैट इन केस ऑफ मिक्स यूज बिल्डिंग्स हैविंग बोथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया, तो उसमें फिर स्क्वायर फीट अलग अलग आप कैलकुलेट करेंगे और उसके मुताबिक जो भी रेट एप्लीकेबल हुआ उसमें कमर्शियल के लिए और रेजिडेंशियल के लिए। बहुत सारे प्लाजा ऐसे बनते हैं जिसमें कुछ पोर्शन कमर्शियल होता है, कुछ रेजिडेंशियल होता है, तो उसके स्क्वायर फीट जो है वो बेसिकली डिटरमिन हो जाते हैं। तो रिस्पेक्टिवली वो रेट कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स पे किया जाएगा। और इसमें एक और चीज है जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रेट हर क्वार्टर में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होगा जितनी कंस्ट्रक्शन की होगी उन्होंने। तो अगर ये बेसिकली ये नहीं है कि एक दफा पे कर दिया तो अगले क्वार्टर में नहीं होगा, हर क्वार्टर में ये पे करना पड़ेगा। और इसमें दूसरा प्रोवाइजो ये है कि इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑन द सेम प्लॉट एज वन प्रोजेक्ट बोथ रेट्स शैल अप्लाई, यानी एक प्लॉट है और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग एक डेवलपर है, उसने प्लॉट डेवलप किया और उसके बाद उसके ऊपर अगर बिल्डिंग भी बनाई है तो वो दोनों रेट अप्लाई होंगे उसके ऊपर, बिल्डर वाला भी और एज ए उसका डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट वाला भी। यानी ये ऊपर वाले रेट्स में से भी एक और नीचे वाले रेट्स में से भी एक। ये एनी साइज 150 पर स्क्वायर यार्ड या 100 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। देन जी एडवांस टैक्स रेट ये बजट प्रपोजल्स में भी था कि कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए जो रेट है वो 148 का वो 6% होगा। वैसे 5.5% है उन आइटम्स के लिए जो कि 12th शेड्यूल में है। और 12th शेड्यूल में भी वैसे मोस्टली वो आइटम है जिनकी ट्रेडिंग हो सकती थी, वेदर दे आर इम्पोर्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर एनी अदर पर्सन। बट कमर्शियल इंपोर्टर स्पेशली जो है उनके लिए कि जिन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करनी, उनके लिए रेट 6% होगा। तो ये एक इंक्रीज है जो कि बजट में भी प्रपोज की गई थी और अभी अप्रूव हो गई, फाइनेंस एक्ट का पार्ट भी बन गई। इसके साथ साथ जो रेट्स में इंक्रीज है
you all know के पेमेंट टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 152 बेसिकली डील करता है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स, और उसमें एक पार्ट है जो कि पेमेंट 152(2)A सेक्शन जो है, उसमें बेसिकली जो लोकली काम कर रही हैं पीईज ऑफ दी नॉन रेजिडेंट्स, उनको क्योंकि पेमेंट्स इधर ही पाकिस्तान के अंदर ही होनी होती हैं, उनके लिए रेट्स ऑलमोस्ट सेक्शन 153 जैसे ही प्रेस्क्राइब्ड हैं। इसमें बेसिकली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स को जो पेमेंट्स होती हैं फीस को, उसमें भी जो इंक्रीमेंट है वो आप ये समझें कि 1% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स रेट्स जो है उसमें इंक्रीज की गई है। जैसे करंट रेट अभी जो अमेंडेड रेट है 5% सप्लाई ऑफ गुड्स की केस में, फॉर पेमेंट अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसमें 5% फॉर कंपनी, अगर जो सप्लायर है वो कंपनी है तो उसके लिए 5%, और अगर अदर देन कंपनी है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो उसके लिए 5.5%। देन प्रीवियस रेट्स इसके लिए 4 एंड 4.5% थे। इसी तरह सर्विसेज में ये जस्ट लाइक सेक्शन 153 की ही तरह की प्रोविजंस है, और इसमें सर्विसेज के केस में भी 3% रिड्यूस रेट प्रोवाइडेड था, आल्दो कि ये 153 में पहले रिड्यूस रेट था और बाद में इसमें इनकलकेट किया गया था सेक्शन 152 में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, तो उनके लिए 3% था, विच हैज नाउ बीन इंक्रीज टू 4%। और बाकी ये जो सर्विसेज स्पेसिफाइड हैं इनके लिए इन ये सारी वैसी की वैसी हैं, मीन इन सब के लिए रेट जो है वो 4% हो जाएगा, जस्ट 3% को चेंज किया गया 4% से। इसी तरीके से वो सर्विसेज जो कि इनके अलावा हैं उसमें फॉर कंपनी एंड नॉन कंपनी रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। 9%, पहले जो 8% था उसको 9% कर दिया गया, पहले जो 10% था उसको 11% कर दिया गया। इसी तरीके से फिर पेमेंट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि प्रीवियस रेट 7% था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 8%, तो इसको भी चेंज कर दिया गया है। इसमें सिंगल रेट है, बेसिकली कॉर्पोरेट सर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक ही रेट दिया गया है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 7% या 8%, अभी नाउ 8% पे टैक्स उस उनकी विद होल्डिंग होगी। अच्छा, इसमें साथ ही एक क्योंकि रेलेवेंट था तो डेफिनेशंस में सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लास जो 41 है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें भी एक चेंज की गई है। बेसिकली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉन रेजिडेंट की वो होती है जिसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान हो, प्रीवियसली ये डिफाइन था, और अभी उसको अमेंड किया गया है कि अगर कोई फिक्स प्लेस नहीं भी है तो ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है कि लेकिन काम कोई भी नॉन रेजिडेंट कंपनी जो है वो इधर पाकिस्तान में कर रही है लोकल, तो उसको वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस अगर है पाकिस्तान में तो वो भी पीई ट्रीट होगी। तो इसमें स्पेशली यहाँ पे जो लोकली एड्स वगैरह, गूगल एड, फेसबुक और बाकी बहुत सारी आईटी बेस्ड जो एग्रीगेटर्स वेबसाइट्स हैं या बाकी बिजनेसेस हैं, वर्चुअल प्रेजेंस है जिनकी, उनके ऊपर भी उनको भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, और टैक्सेशन उनकी एज ए लोकल एंटिटी जैसे बाकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स की होती है उनकी भी वैसे ही होगी जो पाकिस्तान में पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो दिस मीन उसमें जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में वर्चुअल बिजनेसेस को बेसिकली ऐड किया गया। देन जी सेक्शन 153, ये जो अभी अमेंडमेंट्स मैंने दो एक्सप्लेन किए हैं, ये फाइनेंस बिल में भी प्रपोज थी जो कि पास हो गई एंड बिकेम द पार्ट ऑफ एक्ट एज वेल, जो 1 जुलाई से इफेक्टिव है। इसमें पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स यानी सेक्शन 153 द मोस्ट एक्सरसाइज्ड सेक्शन, जो कि तमाम जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं इसमें इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, कंपनीज और इवन प्रोप्राइटरशिप एंड एओपी बिजनेसेस जिनका 100 मिलियन से टर्नओवर ज्यादा है, वो तमाम के तमाम विद होल्डिंग एजेंट्स हैं। तो उनके लिए बेसिकली ये जो चेंज है ये उनको इफेक्ट करेगी कि उन्होंने जो विद होल्डिंग करनी है वो भी करंट रेट जो है उसके ऊपर करनी है, और इसमें भी ऑलमोस्ट हर रेट में 1% का इजाफा किया गया है, एक्सेप्ट जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पेमेंट्स हैं उसके ऊपर नहीं, और पेमेंट्स टू स्पोर्ट पर्सन इसमें नहीं,
और कॉटन सीड, सेल ऑफ राइस, कॉटन सीड और एडिबल ऑयल, उसमें भी इजाफा नहीं किया गया है। उसके अलावा तमाम जो गुड्स सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको पेमेंट करते हुए जो रेट्स थे वो 1% से इजाफा हो गया। जो 4% थे वो 5% हो गया, 4.5% अदर देन कंपनीज के लिए 5.5% हो गया। सो दिस इज हाउ द withholding tax rates has been increased by 1%. द पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स में ये जो रेट है 4% है। यहाँ पे स्पेसिफाइड सर्विसेज, क्योंकि ये रेट टेबल में जगह नहीं थी तो यहाँ पे मैंने स्टार लगाया। वो स्पेसिफाइड सर्विसेज जिनके लिए रिड्यूस रेट 3% था उनके लिए 4% हो गया। वो ये वाली सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्डिंग, एयर कार्गो, कोरियर। ये ऑलरेडी मीन जैसे था वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं की गई इन सेक्टर्स में। इन सेक्टर्स की अगर कोई वेंडर है, इन सर्विसेज का अगर कोई वेंडर है तो उसको पेमेंट करते हुए रेट जो एप्लीकेबल होगा वो ये रिड्यूस रेट होगा 4%, जो कि प्रीवियसली 3%। देन इनकम एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड बोनस शेयर्स, ये एक मेजर अमेंडमेंट है जो कि प्रपोज भी की गई थी और पास भी हो गई। कि जो बोनस शेयर्स हैं जो कंपनीज इशू करती हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड नहीं देती लेकिन बोनस शेयर्स दे देती हैं अपने रिजर्व्स में से, तो उनके ऊपर उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10% जो है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट की एक ट्रेजरी में जमा करवाए। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट है। और इसके साथ साथ जो सेक्शन है, एक तो डेफिनेशन चेंज की गई सेक्शन 2 में क्लास 29, और उसके साथ सेक्शन 236Z जो इंसर्ट किया गया कि इनकम टैक्स उसमें जो बोनस शेयर्स पे है वो लेवी किया गया एज ए विद होल्डिंग टैक्स मिसलिनियस टैक्सेस। और इसका मतलब ये है कि बोनस शेयर जो है उसको एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा और टैक्स रिटर्न में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। और उसके साथ साथ हाई अर्निंग पर्सन के लिए भी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट इम्प्यूटेबल इनकम कंप्यूट होगी और सेक्शन 2 सब क्लास 28 के तहत, और वो हाई अर्निंग पर्सन की जो इनकम है उसमें भी ये इंक्लूड हो जाएगी। ये बोनस शेयर्स पहले भी टैक्सेबल रहे हैं और उसमें 2018 में बेसिकली बोनस शेयर्स के ऊपर ये टैक्स जो था खत्म किया गया था, लेकिन अगेन इसको रीइंस्टेट किया गया है नाउ इन 2023 आफ्टर 5 इयर्स। और इसमें वैल्यूएशन का भी क्राइटेरिया जो है सेक्शन 39(1)(b) में, उसमें भी ये डिटरमन कैसे होगा, तो वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स का कैसे डिटरमन होगी, वो बुक क्लोजर जो डेट है पर लिस्टेड कंपनीज उनके लिए, या जो भी प्रेस्क्राइब करेगा एफबीआर रूल्स इशू करेगा उसके मुताबिक उसकी वैल्यू ली जाएगी जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट होना है। और कंपनी जो है उसने विद इन 15 डेज ऑफ बुक क्लोजर जो है वो टैक्स जमा करवाना है। और कंपनी कलेक्ट रिकवर करेगी टैक्स फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर बिफोर इशूइंग दिस बोनस शेयर्स। और अगर कलेक्ट करने की नहीं कर सकती तो फिर भी उसने जमा करवाना है विद इन 15 डेज, और बाद में रिकवर करे ऑन बिहाफ शेयर होल्डर से, ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी। तो दीज आर दी। और दूसरी चीज ये है कि जो टैक्स कलेक्ट होगा ऑन द बोनस शेयर्स, दिस वुड बी ट्रीटेड एज फाइनल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द पर्सन फ्रॉम whom दिस टैक्स हैज बीन कलेक्टेड और डिडक्टेड। कि सब आई होप के सब सुन रहे हैं, बोर नहीं हो रहे, ऑल्दो के दिस इज लिटिल बिट बोरिंग सब्जेक्ट है, बट फॉर दी पर्संस हु वांट टू रियली लर्न के अमेंडमेंट्स क्या आई हैं। और डेफिनेटली ये तमाम बिजनेस एंटिटीज को, और आप तमाम लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंडिविजुअल लर्निंग के लिए हैं, तो यू वुड नॉट बी मीन फीलिंग बोर। तो इसमें जो जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ये एक मेजर अमेंडमेंट ये प्रपोज भी की गई थी और बाद में इसको पास भी किया गया, फाइनेंस एक्ट का पार्ट है नाउ 236Y। ये एक सेक्शन है जो कि लास्ट ईयर इंसर्ट किया गया था 2 साल पहले। तो उसके अंदर जो रेट था
कि कोई भी बंदा जो है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से अगर अमाउंट रिमिट करता है बाहर, तो उसके ऊपर विद होल्डिंग होगी। और इसमें जो प्रीवियस रेट था वो दैट वाज 1% फॉर एटीएल पर्सन, और नॉन एटीएल के लिए डेफिनेटली बहुत सारे रेट्स जो हैं डबल हैं, एक्सेप्ट दो चीज़ों के। उसमें मीन ज़्यादा मोर मोर टाइम्स उसके ऊपर रेट है, जैसे प्रॉपर्टी की परचेज के सिलसिले में और कुछ व्हीकल्स के लिए। व्हीकल के लिए बेसिकली 200%, और प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर 250% एक्स्ट्रा रेट चार्ज होता है। तो बाकी सब के लिए डबल रेट होता है। इसी तरह इसके ऊपर भी जो पेमेंट करते थे, जो अमाउंट रिमिट होती थी अब्रॉड थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, और जो उसका इशूइंग बैंक है डेबिट क्रेडिट कार्ड का, वो इसमें अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाता है। उसमें रेट 1% जो था उसको 5% कर दिया गया है। और कंसिक्वेंटली वो रेट नॉन एटीएल के लिए डबल होगा, विच इज 10%। देन एक सेक्शन सेक्शन था, प्रीवियसली भी एग्जिस्ट करता था फर्जी, और काफी साल रहा, जिसमें कैश विड्रॉल्स पे जो टैक्स है वो होता था, कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर। पहले तो फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए था, फिर नॉन फाइलर सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए, फिर सिर्फ नॉन फाइलर्स के लिए रह गया था। बाद में फिर खत्म कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2021 में, और 2022 2023 में ये नहीं रहा। अभी फिर अगेन इसको लेवी किया गया है 0.6% ऑन कैश विड्रॉल्स, अगर एक दिन में 50,000 से ज्यादा होंगी किसी भी बंदे की इन अ सिंगल डे। तो ये बेसिकली है कि कोई भी बंदा अगर कैश विड्रॉ करवाएगा, अगर एक दिन में 50,000 से ज्यादा हो जाएगा, तो 0.6% टैक्स विद होल्डिंग करेगा बैंक, और बैंक फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगा। सो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन मेजर एज वेल एज रेवेन्यू मेजर एज वेल। डॉक्यूमेंटेशन भी इससे होगी और रेवेन्यू मेजर भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन होती हैं पाकिस्तान में, एज यू ऑल नो। और उसके हिसाब से ये रेवेन्यू मेजर भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन मेजर भी है, जिसकी बेसिस पे एफपीआर जो है वो लोगों को नोटिस भेज सकता है, या उनको टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए कह सकता है। दी एक एडवांस टैक्स फॉर फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स, जो लोग फॉरेन वर्कर्स को अपने घरों में या अपना मुलाजम रखते हैं, तो डोमेस्टिक घरों में मुलाजम रखते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स स्पेशली। तो उनके लिए ये है कि उनकी जो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी है, वो उनका वीज़ा इशू करते वक्त या रिन्यू करते वक्त 200,000 रुपीज पर पर्सन, यानी कि वो एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगी। देन एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2022 आया था। इसकी एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी दी गई थी। 2022 आया था, और उसकी एग्जेम्पशन इसमें स्पेशली रिकोडेक मंसूबा जो है उसमें, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या और भी लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत करेंगे, उनकी एग्जेम्पशंस जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। तो ये एक सेक्शन 44A स्पेशली इंसर्ट किया गया है टू प्रोवाइड देम द स्पेशल एग्जाम्पशन। ऑल्दो कि ये सेकंड शेड्यूल के तहत भी इसको इंसर्ट किया जा सकता था, बट क्योंकि इसको एक जो सेक्शन में जो एग्जाम्पशंस वाला पोर्शन है, जो सेक्शन 41 से शुरू होता है 49 तक जाता है, तो उसमें जो वो जो पार्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। और देन इज इट कि उनको एग्जाम्पशन देने के लिए सेक्शन 44A हैज बीन इंसर्टेड। देन एक ये एक बजट में सेक्शन नया इंसर्ट किया गया था 99D। ये बेसिकली जो विंडफॉल एक्स्ट्रा गेन्स एडिशनल टैक्स उनके ऊपर गवर्नमेंट को लगाने का इख्तियार दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू इम्पोज एडिशनल टैक्स ऑन कंपनीज। अच्छा, इसमें भी पहले पहले था ऑन एनी पर्सन, और अब उसको कर दिया गया ऑन कंपनीज who have any income, profits or gains that have arisen due to any economic factor or factors that resulted in windfall income, profits or gains। यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अगर कोई सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कमाता है,
ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकती है। जैसे कि ये डॉलर की फ्लक्चुएशंस की वजह से करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस, या बैंक्स ने जैसे इसको उसमें से इनकम्स जनरेट की, या और सेक्टर्स भी जो इफेक्ट हुए उसमें, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा सकता है। ये इसके लिए रूल्स प्रेस्क्राइब किए जाएंगे जैसे कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी। इसमें फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में जो रेड हाईलाइटेड चीजें हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज आई। जैसा कि मैंने बताया, पहला काम था कि वो तमाम एनी ऑन एनी एडिशनल ऑन एनी पर्सन लगाया जा सकता था, अब सिर्फ कंपनीज पे होगा। और ये प्रॉफिट गेन्स, विंडफॉल इनकम, ये थोड़ा सा चेंज की गई लैंग्वेज। और इसमें एप्लीकेबिलिटी जो थी, वो प्रपोज जो की गई थी 5 years थी, अब इसको कर दिया गया 3 years। यानी कि ये इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द 3 years प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर फ्रॉम टैक्स ईयर 2023। यानी पिछले सालों के लिए भी किसी के ऊपर ये टैक्स जो है लगाया जा सकता है, टू कलेक्ट दिस एडिशनल टैक्स। और इसमें बेसिकली स्कोप, मैनर ऑफ पेमेंट और एग्जाम्पशंस shall be covered by a notification issued by the government। जो है वो इसमें तो क्या क्या शामिल होगा, क्या एक्सेप्शन होगी, इसके तमाम रूल डिफाइन करेगी थ्रू ए नोटिफिकेशन। और इसमें खैर अभी जो चेंज आई है उसमें ये लिखा गया है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट इस तरह का कोई नोटिफिकेशन इशू करेगी, वो शेल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली the notification issued under this section within 90 days of the issuance of such notification or by 30th day of June of the financial year whichever is earlier। यानी अगर तो बजट का टाइम आ रहा है तो 30th जून से पहले फाइनेंस बिल का पार्ट बन जाएगा वो। और अगर उसके बाद है तो फिर भी 90 डेज, विद इन 90 डेज वो बिफोर द नेशनल असेंबली वो जो नोटिफिकेशन होगा वो रखा जाएगा और उसको पास करवाया जाएगा। और उसके लिए फिर कोरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स कुछ की गई हैं फिर शेड्यूल में, और बाकी इस तरीके से। देन जी, एडवांस टैक्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सॉरी, हमारा टाइम जो था वो तो 1 घंटा है, हमें शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे। ये इनकम टैक्स में काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स थी, सेल्स टैक्स और उसकी अमेंडमेंट्स कम है। तो ये इनकम टैक्स का स्टैंड होने वाला है, और उसके बाद हम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज की अमेंडमेंट्स का भी जिक्र करेंगे। तो एडवांस टैक्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जी, इसमें स्ट्रेट 1% का इंक्रीमेंट आया है। पहले 2% रेट होता था, अब 3% कर दिया गया है। और कॉन्सिक्वेंटली जो रेट है नॉन फाइलर्स के लिए, उसमें आपको पता है कि 250% एक्स्ट्रा है टैक्स, तो 250%। तो 236C का जो है 236 के का टैक्स जो है, सॉरी ये उल्टा लिखा गया है, 236 के का जो टैक्स है वो 10.5 होगा, और 236C का 6% होगा। हाँ, ये इसको 236 के सामने पड़ा जाए, 10% और 6%। तो इसी तरीके से वो भी ऐसे ही था परचेजर और सेलर्स के लिए। अच्छा, इसमें फर्दर एक चीज ये की गई है कि 236C जो है वो प्रेस्क्राइब करता है एडवांस टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म। नाउ दिस न्यू सब सेक्शन 2A, एक इसमें 2A सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है दैट एनी पर्सन, इसमें एक ये मेजर चेंज है जी, कि जो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और ट्रांसफर प्रॉपर्टी शेल नॉट रजिस्टर रिकॉर्ड। इसमें बेसिकली जो आपको पता है कि 236C जो है, ये एडवांस टैक्स कलेक्ट होता है प्रॉपर्टी पे, और एक 7E सेक्शन है जो कि विच इज आल्सो सब्जुडिस। तो उसके हवाले से इस सेक्शन 236C में चेंज की गई है कि जो रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो ये इंश्योर करेगी कि 7E का टैक्स जो है वो पेड है। तो ये भी बेसिकली इसमें भी अभी प्रेस्क्राइब होगा कि वो कैसे ये इन द प्रेस्क्राइब मोड एंड फॉर्म एंड मैनर ये एफबीआर प्रेस्क्राइब करेगी। ऑल दो कि ये इम्प्रैक्टिकेबल सा लगता है, एनी हाउ विल सी के एफबीआर प्रेस्क्राइब क्या करती है। देन रिकवरी ऑफ लाइबिलिटी अंडर अदर लॉज, ये है कि एफबीआर को एम्पावर कर सकते हैं थ्रू एनेक्टमेंट एनेक्ट और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एनेक्टमेंट कर सकती है कि एफबीआर को कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जैसे अभी भी WWF और कुछ कैपिटल वैल्यू टैक्स, इस तरह के टैक्सेस जो कि अदरवाइज हैं एफबीआर की डोमेन में, उस तरीके से नहीं आते, लेकिन उसकी रिकवरी जो है वो
FBR को दी गई है, उसमें और भी टैक्सेस हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट रिकवर करना चाहे और FBR की मशीनरी को यूज कर सकती है। देन एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट 152 है, ये बेसिकली नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट्स के लिए अगर कोई ट्रीटी में ऐसी एग्जाम्पशन है तो वो अक्सर अप्लाई करते थे, तो उसका जवाब नहीं आता था। अभी भी शायद ना आए, बट इसमें लिखा गया है कि FBR का जो पोर्टल है IRS, उसके ऊपर विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, लेकिन कमिश्नर को फिर भी पावर है कि वो उसको कैंसिल करे, मॉडिफाई करे, वट। चलिए, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, इसके बारे में काफी सारे इंसेंटिव स्पेशली दिए गए थे बिफोर व्हेन द बजट वाज प्रेजेंटेड, लेकिन बाद में उन सब को निकाल दिया गया, जैसे स्पेशली आईटी सेक्टर को एसएमई सेक्टर का दर्जा दिया जाना था, जिसमें कुछ सालों की एग्जाम्पशन थी या बहुत मिनिमम रेट पे टैक्सेशन होनी थी उनकी, इवन लोकल टैक्सेशन की। एनी एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज इज ऑलरेडी एट वेरी मिनिमम रेट, जो कि 0.25% है इन केस ऑफ जो PSAB से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, और अदर देन दोज विच इज 1%। और इसमें फिर ऑप्शन थी 154A में, ये जो अमाउंट आती है इसको फाइनल टैक्स के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ दी कंडीशंस जो कि सेक्शन सब सेक्शन 5 में दी गई थी, 154 सब सेक्शन 2 में। उसमें सब सेक्शन 2 में जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना जरूरी था, जिसके बाद वो फाइनल टैक्स ऑप्ट किया जा सकता है। उसमें जैसे एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगी, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग होगी फॉर दैट एंटिटी, और उसमें एक ये रिक्वायरमेंट थी कि सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी उसने की हो। तो समटाइम्स इन केस ऑफ स्मॉल कंपनीज या सिर्फ एक्सपोर्टर है, तो उनके लिए उन्होंने क्योंकि टैक्स नहीं देना होता, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड भी हों इन सम केसेस। तो स्पेशली इन पंजाब और KP के वो एग्जाम्प्ट हैं इनकम आईटी एक्सपोर्ट की, कुछ में जीरो रेटेड है जैसे इस्लामाबाद में, यानी वो जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट हो अगर एक्सपोर्ट, तो फिर भी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो उस सूरत में फिर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग वाली कंडीशन जो थी 154A में, टू ऑप्ट फॉर फाइनल टैक्सेशन विच हैज बीन डिडक्टेड एट रिड्यूस रेट दैट इज 0.25%, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी इवन उन्होंने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल ना भी की हो तो। ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जी, इसमें अमेंड में पूरा का पूरा सेक्शन इनकम टैक्स लॉ में, सेल्स टैक्स लॉ में और फेडरल एक्साइज लॉ में सब्स्टिट्यूट किया गया है, विच इज सेम। उसमें कोई डिटो है सब जगह पे। तो उसमें क्योंकि वैसे भी इनलैंड रेवेन्यू ही सबको डील करता है, तो उस सूरत में जो चेंज है उसमें यह है कि टाइम पीरियड्स कुछ कम किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी की सूरत में। एक पहले चीफ कमिश्नर जो था वो चेयरपर्सन होता था, अब उन्होंने रिटायर्ड जज को, जो हाई कोर्ट का जज से रैंक से नीचे ना, उसको चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी बनाया गया है इसमें। और उसके अलावा फिर ये है कि एक जो चेंज है वो ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी ऑफ द, इसमें केस विड्रॉ करने की इजाजत नहीं जरूरत होगी, जस्ट इंटीमेशन होगी, और विद इन 45 डेज जो है वो केस जो है वो डिसाइड करना होगा। पहले 120 डेज था। और तीसरी चीज ये है कि बाइंडिंग टैक्स पेयर पे नहीं होगा। ये पहले ये बाइंडिंग था ऑन बोथ द कमिश्नर एंड द टैक्स पेयर, तो अभी ये बाइंडिंग नहीं होगा। जैसे ये प्रीवियस अगली स्लाइड पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली प्रोविजंस थी उसमें। Thank you so much, and we hope we will continue such sessions in future also, and you will be part of us. So thank you again. Allah Hafiz.